Good morning, students. In our previous lecture, we study about major decisions of financial management like investment decision, financial decision, dividend decision, and liquidity decision, which laid the base of financial management. Various functions of financial management along with its goal. Now, in this lecture, we will going to cover the role and function of financial manager and the theory part of time value of money. Now the functions of financial manager. Financial manager first function is to estimate the financing need. पहले आपका फाइनेंस मैनेजर ये एस्टिमेट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की कितनी नीड है, कितना कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए. Then they need to identify the source of the fund. There are n number of source of fund which is also called the instruments. Financial instruments like equity, preference share, debentures, etc. Based on that, its cost he estimate the cost, and after estimating the cost of each and every source of fund, they work on developing the optimum capital structure. After arranging the finance, he main second role is to capital budgeting. In capital budgeting, where its role is to take investment decision by using various discounting and non-discounting technique of capital budgeting. Then working capital management, where he need to decide what will be our optimum working capital that is sufficient to run our day-to-day business operations. Then he need to take decision related to dividend policy, where he take decision whether to retain the profit of the organization or to distribute it as a dividend. And if he decided to retain, then how much it is required to retain, and if he decide to give it as a dividend, then how much dividend should be given, and what will be its impact in our valuation. Then he take decision related to merger and acquisitions also, where he analyze or value the impact of the merger in the company valuation, its future growth prospects and all. And he is using various financial analysis tools, cost volume profit analysis, then financial control activities. All these are the important functions of financial manager in the present scenario. Then the aim of finance function. The aim of finance function is to procurement of fund as we discussed here. Then effective utilization of fund. आपने प्रिक्योर किया फंड, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, एंड हाउ टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी दैट विल हेल्प यू टू मैक्सिमाइज योर फर्म वैल्यू. Ultimate objective or ultimate function of finance manager is to increase the value of the firm, that is shareholder wealth. Clear, students? Now we are going to start our numerical part of the financial management, under which today in this lecture I am going to cover only the theory part of time value of money. It is a very basic concept of financial management. Time value of money means the sum of money received in future is less valuable than it is today. आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा मैं आपको आज 100 रुपीज़ नहीं दूंगी, ठीक है, आपको मैं ये 100 रुपीज़ जो है 5 ईयर बाद दूंगी, तो क्या वो 5 ईयर बाद जो मैं आपको 100 रुपीज़ दे रही हूँ उसकी वर्थ उतनी ही होगी जो आज है? नहीं. आज आप हो सकता है कि आप 100 रुपीज़ से जो है एक टेबल परचेस कर पा रहे हैं, बट उसी 100 रुपीज़ से 5 ईयर बाद आप टेबल परचेस नहीं कर पाएंगे. हो सकता है कि आपको उस 100 रुपीज़ की जगह 150 रुपीज़ देना पड़े. तो इट मीन्स जो मनी है उसकी कुछ टाइम वैल्यू है, ठीक है. मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप द बिटवीन वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड एट प्रेजेंट
आज की डेट में जो आपको वैल्यू ऑफ आपको मनी रिसीव्ड हो रही है, एंड द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड एट फ्यूचर। क्लियर? आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हेल्प से स्टडी करते हैं। क्लियर? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अलग अलग टाइम पीरियड में आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू मीन्स 1 रुपी की अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, दोनों की जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है वो अलग अलग है। क्लियर? इसमें हमारे दो टेक्निक हम यूज करते हैं। वी आर यूजिंग टू टेक्निक, वन इज कंपाउंडिंग एंड सेकेंड इज योर डिस्काउंटिंग। हियर इज एग्जाम्पल। फर्स्ट, यू हैव रुपीज 1 लाख। आपने उस 1 लाख को एडजस्ट किया, ठीक है, एडजस्टमेंट्स आपने किए, उसमें इंटरेस्ट लगाया एंड ऑल, और आपको फ्यूचर में जो है 1,25,000 आपको मिले। मीन्स T0 आप जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है? हियर दिस T0, सपोज ये हमारे टाइम को डिनोट करने की टेक्निक है। ठीक है, सपोज T0 का मतलब है 2020। हमारा ईयर क्या चल रहा है? 2020। ठीक है, 2020 में मैंने जो है 1 लाख रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करे, और ये आप देख रहे हैं T1। T1 का मतलब हुआ, सपोज आपने कहा 2025 आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता T5 तो इट मीन्स 5 ईयर। यहाँ T1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 साल बाद, मीन्स 2021। आपको जो है 2021 में कितने रुपीस मिल रहे हैं रिटर्न में? 1,25,000। इट मीन्स आप एरो के डायरेक्शंस देख रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर कंपाउंडिंग द वैल्यू। क्लियर? यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लाख रुपीस हमें है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है 1,25,000। अब जब मुझे ये मालूम है कि मुझे फ्यूचर में मीन्स T1 मीन्स 2021 में 1,25,000 मिलेंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में मुझे कितने रुपीस मिलने वाले हैं? मीन्स 2020 में मुझे कितने रुपीस मिलेंगे? दैट मीन्स 1 लाख रुपीस मुझे आज में मिले। आप देख रहे हैं एरो के डायरेक्शंस रिवर्स में है, तो इट मीन्स यहाँ आप कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए? डिस्काउंटिंग टेक्निक। क्लियर? मीन्स कंपाउंडिंग में क्या है? यू हैव दिस वैल्यू एंड इन कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग यू हैव दिस वैल्यू। इसके बेसिस में आप कैलकुलेशन करते हैं। ओके, नाउ इन लैंग्वेज फॉर्म आप देखिए, अज्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। आपका इंटरेस्ट रेट मीन्स अगर फ्यूचर में अगर आपको मिल रहा है पैसा, कंपाउंडिंग आप कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग द वर्ड इंटरेस्ट रेट। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू को, तो वी आर यूजिंग द वर्ड डिस्काउंट रेट। क्लियर? द वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट। आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए, कितने में? 10% इंटरेस्ट में। कंपाउंडेड आपका ईयरली हो रहा है, ठीक है, और आपको जो है आफ्टर 2 ईयर्स कितने मिल रहे हैं? ₹121। तो इट मीन्स इट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर करेंट कैश फ्लो। आपका जो 100 रुपीज़ आज का है, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है 2 साल बाद? 121 रुपीज़ इफ यू आर गेटिंग 10% इंटरेस्ट। ओके, this is the example of compounding. Then in same scenario, you are receiving rupees 121 after 2 years is equal to receiving rupees 100 today. Means आपको फ्यूचर में क्या मिल रहा है? 121 रुपीज़ मिल रहे हैं, यू नो इट, जिसकी वैल्यू आज की डेट में क्या है? 100 है। तो इट मीन्स आप बैकवर्ड जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। एंड इफ वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, वी आर यूजिंग द वर्ड डिस्काउंटिंग। क्लियर? इट मीन्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹121 रिसीवेबल आफ्टर
2 ईयर, ठीक है, ईयर इज ₹100 टुडे। आपकी आज में जो 100 रुपीज़ की वैल्यू है, 2 साल बाद आपकी उस रुपये की वैल्यू क्या होगी, वो 121 होगी। इसी को हम कहते हैं कि देयर इज़ अ टाइम वैल्यू। जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है मनी की, उसकी वैल्यू है। क्लियर? अब ये क्यों होता है, कैसे हमारी मनी की जो वर्थ है, मनी की जो आपकी एबिलिटी है, परचेजिंग पावर है, वो आपकी कम हो रही है। टाइम वैल्यू मनी मीन्स परचेजिंग पावर, आप देख रहे हैं। क्यों आपकी परचेजिंग पावर जो है, जैसे जैसे टाइम पास होता है, आप लोगों का टाइम इंक्रीज होता है, आपकी वैल्यू कम हो जा रही है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ रिस्क। हमारा इन्फ्लेशन है, ठीक है, परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, हमें रिस्क है, हमें मालूम नहीं है। आज के हाथ आपको सामने पैसे मिल रहे हैं 100 एट प्रेजेंट, इट इज़ सर्टेन, बट फ्यूचर में वो 121 होंगे या नहीं होंगे, या 122 होंगे, ठीक है, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, आप जानते नहीं, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। पर्सनल कंजम्पशन प्रेफरेंस है। मैं आज की डेट में अगर अब 100 रुपीज़ आपको दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो इट मीन्स आई एम सेक्रीफाइसिंग माई कंजम्पशन, ठीक है। तो जब मेरी अपनी प्रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई नीड समथिंग इन रिटर्न। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कहेंगे 100 रुपीज़ मुझे अभी दे दो, मुझे 2 साल बाद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इफ़ यू आर हैविंग 100 रुपीज़ नाउ, आप उस 100 रुपीज़ को बैंक में रखेंगे, आपको कम से आपको एटलीस्ट 3.75% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं और, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अर्निंग हो, प्रॉफिट हो। दैट्स वाई आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। नाउ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी is a concept that money available now is worth more, ठीक है। आपके पास जो अभी वैल्यू है, मनी है जो अवेलेबल है, उसकी वर्थ क्या है, ज़्यादा है देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन फ्यूचर। अगर 100 रुपीज़ आज मैं आपको दे रही हूँ और 100 रुपीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको फ्यूचर में दूंगी, तो कौन से 100 रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, जो आपको आज मिल रहे हैं एट प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ पोटेंशियल टू अर्न, उसके अंदर पोटेंशियल है अर्न करने की, उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अर्न कर सकता है। दैट्स वाई। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला, टुडे वी विल डिस्कस ओनली द फॉर्मूलाज। कंपाउंडिंग टेक्निक फॉर्मूला, कंपाउंडिंग डिनोट बाय द सी, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। कंपाउंडिंग वैल्यू का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू आपकी क्या होगी, इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मीन्स टुडे, आज की डेट में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, into 1 plus I raised to power n. 1 plus I means the interest amount. आप कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंड करेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए करेंगे। क्लियर? इन केस आपने कहा कि वी आर कंपाउंडिंग नॉट ईयरली, वी आर कंपाउंडिंग इन एनुअली, मंथली और क्वार्टरली, इन दैट केस हाउ यू विल गोइंग टू कैलकुलेट, आप जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको सिंपल डिवाइड करेंगे कंपाउंडिंग पीरियड से, कि एक साल में आप कितने बार कंपाउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जो है एक साल में जो है, आपने कहा कि हाफ ईयरली है कंपाउंड, आपको हर 6 मंथ में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट मीन्स आप कितने 6 मंथ जो है में मिल रहा है, तो इट मीन्स आप कितने बार कंपाउंड करेंगे, 2 टाइम्स ओनली, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो 2 बार आपका कंपाउंड हो रहा है। अगर आप क्वार्टरली की बात करेंगे तो आपका कंपाउंड कितना होगा, 4 टाइम्स, ठीक है। अगर मंथली अगर आप कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट मीन्स यू आर कंपाउंडिंग बाय 12, ठीक है। ट्वाइस इन अ मंथ होगा तो 24, और अगर डेली बेसिस में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड डेली, तो इट मीन्स 365 डेज, ठीक है। तो आपको कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर कितने बार आपको कंपाउंड करना पड़ रहा है, उससे आप लोग डिवाइड कर रहे हैं। और सेम चीज़ आप लोग क्या कर रहे हैं, m इंटू एन रेज़ टू पावर में, आप उतने नंबर ऑफ ईयर्स को उससे इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्लियर? दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दैट यू कैलकुलेट इन योर स्कूल लाइफ। देन डिस्काउंटिंग टेक्निक और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, which is very useful in your capital budgeting also. मीन्स अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है, इससे पहले आपके पास क्या था,
इससे पहले आपके पास क्या है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। आप फ्यूचर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे कंपाउंडिंग में। यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास जो है फ्यूचर की वैल्यू है, और फ्यूचर की वैल्यू से आप आज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे, तो इट मीन्स इट्स अ डिस्काउंटिंग टेक्निक। वही फॉर्मूला सेम है, वो रिवर्स हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू कंपाउंडेड वैल्यू मीन्स फ्यूचर वैल्यू जो थी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आप जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को, जो बुक मैंने आपको ई बुक भेजी है, आप उसे एक बार उसमें पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कॉल करें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर अ न्यूमेरिकल पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू।